پیچھے ہٹو پلیز۔ وہ ذرا سٹپٹا کر اسے پوری قوت سے پیچھے کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ بھی استہزائیہ مسکراتا خود ہی فاصلے پر ہو گیا تھا۔ جا کر کافی بناؤ میرے لیے۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر شعلہ دکھا کر سگریٹ سلگاتا وہ لبوں سے لگا گیا تھا۔ حالے نے تعسفی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نشئی، وہ زیر لب بڑبڑائی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اس نے آئی برو اٹھائے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے فوری اسے کوہنی سے پکڑنا چاہا، مگر وہ جھٹ سے فاصلہ قائم کر گئی۔ کافی بنانے جا رہی ہوں۔ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگتی وہ روم سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتا اپنے سیکریٹری کو کال ملا رہا تھا۔ کچن میں آ کر دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھتی، کیبنٹ سے چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالتی وہ کافی بنانے میں مگن تھی، جبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ جھٹ دوپٹے کا ہوش آیا تھا، مگر جب تک وہ پشت پر آ کھڑا ہوا تھا۔ بن گئی کافی؟ حالے انکمفرٹیبل فیل کرتی اب اس کی طرف رخ بدلنے سے اجتناب کر رہی تھی، کیونکہ دوپٹہ لینے کے لیے پہلے اس سنکی شخص کو پار کرنا پڑتا۔ بس بن گئی، اب پیچھے ہٹو، میں نے کب اٹھانے ہیں؟ اسے یوں ہی جمع دیکھ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ کیا بول رہی ہو تم؟ تم آپ بولا کرو۔ شجا نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور ہاتھ موڑ کر پشت سے لگایا تھا، جو اپنی حالت کا سوچتی بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مزاحمت کرتی اب وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں یہ نفسیاتی آدمی چاہتا کیا تھا۔ تمیز سے بولا کرو۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ حالے نے بھی بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور اس کا یہی انداز شجا کو زہر سے بھی زیادہ زہر لگتا تھا۔ ہاتھ چھوڑو، وہ بھی ضد کی پکی تھی، جبھی شجا نے ہاتھ ذرا سختی سے موڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ اس بار وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ تکلیف سے حالے نور کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ بالآخر تنگا کر اس نے اس جھکی انسان کی بات مان ہی لی تھی، جبھی اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تھا اور کیبنٹ سے کپ نکال کر اس میں کافی انڈیلی تھی۔ جاہل جنگلی، تمہیں تمیز نہیں ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کی؟ اتنی زور سے میری کلائی موڑ دی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا ہاتھ سہلاتی وہ ایک بار پھر اپنی زبان کے جواہر دکھانے لگی تھی۔ لگتا ہے ہاتھ کے بجائے زبان جڑ سے اکھاڑنی پڑے گی تمہاری جیسی نافرمان عورت کی۔ شجا کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، جبھی دانت کچکچا کر بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ خود کو ملامت کی تھی۔ اس کا مقصد ہرگز بھی اسے ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ گھر چھوڑ کر آؤ مجھے۔ آنکھیں رگڑتی اس بار وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ڈنر کر کے جائیں گے؟ وہ مطمئن لہجے میں بولا تھا، ساتھ ہی ایک کافی کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ مجھے نہیں پینی۔ وہ درستگی سے بولتی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے واپس بیڈ روم میں چلی گئی تھی، تو وہ کندھے اچکا گیا۔ ساتھ ہی قدم باہر ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھائے تھے۔ اب وہ مزے سے بیٹھا ایل سی ڈی پر میچ دیکھ رہا تھا، جبھی وہ منہ ہاتھ دھوتی واپس باہر آئی تھی۔ گھر جانا ہے مجھے۔ کافی کا ایک سپ لیتے اس نے یوں ہی صوفے پر نیم دراز ہوئے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، جو دوپٹہ سر پہ جمائے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہاں آؤ، بہت بورنگ لڑکی ہو تم۔ کہنے کو بیوی ہو، مگر مجال ہے جو تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا کوئی مزہ آ رہا ہو۔ تم سے بہتر تو میری گرل فرینڈز ہیں، کم سے کم انٹرٹین تو اچھا کرتی ہیں۔ وہ جان کر اس کا دل جلانے کے لیے بولا تھا۔ تمہاری گرل فرینڈس بھی ہیں؟ اس بار وہ مشکوک لہجے میں بولتی تو قدم چل کر نزدیک چلی آئی تھی۔ بہت؟ اس کے چہرے پر ناگواری میں لپٹے تپے تپے تاثرات دیکھ کافی پینے کا مزہ ہی اب آیا تھا۔ چلو جی، مجھے لگا تھا صرف بلیک میلر پلس جنگلی ہو، مگر تم تو رچ کے بغیرت بھی ہو۔ استہزائیہ مسکرا کر ہاتھ جھاڑتی وہ ذرا فاصلے پر صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کے تبصرے پر شجا کے ماتھے کے بالوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حد میں رہا کرو اپنی، ورنہ 2 منٹ لگیں گے تمہاری عقل نکالنے میں۔ وہ ناگواری سے درست لہجے میں پھنکارا تو حالے نے بھی اسے غصے سے کھولتا دیکھ ذرا زبان کو لگام دیا تھا، مگر زبان کی کھجلی ہنوز برقرار تھی۔ ویسے تم نے انہی چھچوری گرل فرینڈس میں سے کسی ایک سے شادی کیوں نہیں کی؟ میری زندگی کیوں عذاب کی؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ کیونکہ میرا دل جو آ گیا تھا تم پر، محبت بیگم، محبت۔ وہ اس قدر اچانک سے غیر متوقع بات کر گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو حالت ٹھہر گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ رقص دیکھ چہرے کے ساویے بگڑ گئے تھے۔ محبت، ہں۔ وہ سر جھٹک گئی۔ شجا نے آگے بڑھ کر کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ خیر اٹھو، تمہیں دادوں سے ملانے لے کر جانا ہے، ریڈی ہو جاؤ جا کر۔ اب وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں جا رہی وہاں پر۔
वो एकदम ही गड़बड़ाई। भला रुखसती से पहले जाती अच्छी लगेगी? क्यों? क्या मसला हो गया? उसकी पेशानी पे बल पड़े थे। वो वो मैं घर में सिर्फ़ शॉपिंग कर कर आई हूँ ना। उसने झट बहाना गढ़ा था। हाँ तो? किसी गैर के साथ चाँद पर नहीं जा रही हो, अपने शौहर के साथ अपने घर जा रही हो। वैसे भी निकाह में हो मेरे, मेरी इजाज़त काफ़ी है बस। वो सादगी से बोलता उसे बावर करा गया। लेकिन वो कुछ बोलती कि वो कोहनी से पकड़ कर उठाता अपने बेडरूम में ले गया था। ये ड्रेस पहन लो और ये ज्वेलरी वगैरह भी पहन लेना। दादो इन सब चीज़ों को बहुत नोटिस करती हैं। घर से यूँ ही मुँह उठाकर आ गई हो। वो इसका खाली हाथ और कानों पे चोट करता बोला था। मेरे कपड़ों को क्या हुआ? ठीक तो है? वो हैरान हुई। चेंज कर लो और अब मैं अपनी बात दोहराऊँगा नहीं। इससे कबल के इसकी ज़बान एक बार फिर चलती, वो सख्ती से बोला तो वो गहरी साँस भरती, कपड़े उठाकर वॉशरूम की जाने बढ़ी थी। जबकि वो भी अलमारी से सूट उठाता जो उसे वॉशरूम की जाने पड़ा था। मैरून रंग का शिफॉन सूट उसकी खिली-खिली रंगत पर खूब जच रहा था। ज्वेलरी पहनकर हल्का-सा मेकअप करती, वो इन सब चीज़ों की मौजूदगी देख ज़रा हैरान हुई। फिर चोरी से दरवाज़े को देख ड्रेसिंग रूम की जानिब कदम बढ़ाए। अलमारी खोली तो वहाँ काफ़ी लेडीज़ सूट लटके हुए थे। जभी शुजा भी अपनी भरपूर तैयारी के साथ खुशबुएं बुखेरता रूम में आया था। एक लम्हे को वो गड़बड़ाई, फिर आराम से अलमारी का दरवाज़ा बंद करती वो उसकी जानिब घूमी। एक लम्हे को तो वो उसे देख सांस लेना भूल गई थी। वो लग ही इतना हैंडसम रहा था। सियाह रंग पैंट पैंट के साथ शर्ट पर डेनिम की जैकेट लिए, बालों को ऊपर सेट किए, वो चमकती आंखों में मानी खैस चमक लिए करीब आया था। इतना घूर-घूर कर मत देखो, नज़र लगाओगी क्या? वैसे मैं शुरू से ही हैंडसम हूँ। वो इसका टिकटिकी बाँध के देखना नोटिस कर चुका था, जबकि वो अपनी बेसाख्तगी पर शर्मिंदा हुई, मगर एक लम्हे में सँभल गई थी। ये कपड़े किसके हैं और ये मेकअप वग़ैरह? तुम क्या अपने इस अपार्टमेंट को डेटिंग के लिए यूज़ करते हो? बल्कि 1 मिनट, कहीं तुम्हारे इन गर्लफ्रेंड्स के साथ नाजायज़? वो सोच-सोच कर बोलती अपनी बात मुकम्मल करती कि इससे कब्ल ही वो पूरी तरह से दहाड़ा था। हाले हल्की-सी चीख के साथ 2 कदम पीछे हुई थी। शट अप! जस्ट शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर के बारे में इतनी घटिया बात करने की? एक लम्हे में उसका बाजू पकड़कर दीवार से लगाता वो शिद्दत से गुर्राया। हाले उसका ये रूप देख सहम गई थी। बोलो, कैसे हिम्मत हुई? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता हाले नूर। वो पूरी शिद्दत से उसके मुँह पे दहाड़ा था। वो तेज़ी से अपना चेहरा फेर गई। कान फटते हुए महसूस हुए थे। यहाँ मौजूद सारे कपड़े अनटच हैं, जो तुम्हारे लिए मँगवाए थे, क्योंकि मैं किसी भी वक़्त कहीं भी चला जाता हूँ। शादी के बाद एक सूटकेस लेकर घूमने का इरादा नहीं है मेरा, समझी? वो ना चाहते हुए भी सफाई दे गया था। साथ ही एक झटके से उसे छोड़ा था। उसने अपनी रुकी हुई साँस बहाल की थी। खुद खुद ही तो बोल रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगा। हाले ने उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देख अपनी पोज़ीशन क्लियर की। अपना ये दिमाग कम चलाया करो, समझी? अब चलो, सारा मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। वो बड़बड़ाया, जबकि उसने जल्दी से पाँव में सैंडल डाली थी। और ये क्या मुँह उठाकर दुपट्टे से घूमती हो पूरी दुनिया में? चादर कहाँ है तुम्हारी? उसे अब नई बात पर गुस्सा आया था। मैं नहीं लेती चादर, उसने खुश्क लहजे में बावर कराया। नहीं लेती तो अब लिया करो। हमारे घर की औरतें बगैर चादर के दहलीज पार नहीं करती। हाले ने निगाहें चलाई थी। चलो, उसे आगे चलने का इशारा करता वो खुद पीछे आया था। अपार्टमेंट लॉक करने के बाद वो इसका हाथ थामता लिफ्ट तक आया था। अब उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। ये खड़ूस सिर्फ मेरे लिए ही है। लिफ्ट में बुरे-बुरे मुँह बनाकर सोचती हाले इस बात से यकसर अनजान थी कि पीछे खड़े शुजा की निगाहें आईने से नज़र आते उसके अक्स पर ही जमी थीं। सिया प्राडो बख्तियार विला के पोर्टिको में आकर एक झटके से ठहरी थी। उसने रुख उसकी जानिब फेरा था। घरवालों के सामने अच्छे से बिहेव करना। उन्हें कतई नहीं पता लगना चाहिए कि हमारे दरमियान कैसे मामलात हैं। और हाँ, ज़बान बंद रखना अपनी। कोई भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, समझी? अब चलो, उसे हिदायत करता अब वो उसके कदम से कदम मिलाकर विला में दाखिल हुआ था, जबकि उसे शदीद झिझक का सामना था। भाभी आप? मरियम जो हॉल में सोफ़े पर रिलैक्स अंदाज में बैठी थी कि उन्हें देख चीख मारकर उन दोनों की जानिब भागी। मरियम, मेरा बेटा आराम से।
शुजा ने फौरन टोका था, जबकि हाले उसका इतना नर्म अंदाज देख बस खश खाकर गिरने से बाल बाल बची थी। आप भाभी को लेकर आए, आई एम सो एक्साइटेड। कैसी हैं भाभी आप? वह झट से उसके गले लगी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? खुश दिली से उसके गले लगती वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुई थी। दादो कहाँ है? उसने इर्द गिर्द में निगाहें घुमाई। अभी नमाज़ पढ़ने गई हैं। आ जाएँ भाभी, आपको सबसे मिलाऊँ। हमारे यहाँ कोई रूम से बाहर नहीं आता। शुजा बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट देख बहन की जेबों में हाथ फंसाए खुद भी मुस्कुरा रहा था। मेरा लाडला कहाँ है यार? उसे अब अपने भतीजे की याद आई थी। अपनी मॉम के पास है मगर सो रहा है। शुजा ने ताज्जुब से सर झटका। खैर तुम इसे सबसे मिलवा दो, मैं ज़रा दादो से मिल लूँ। बस फिर हम दोनों निकलेंगे। तुम्हारी भाभी को घर भी छोड़ना है मैंने। वो नीचे बने रूम्स में एक की जानिब बढ़ा था। वो जो नमाज़ पढ़कर तस्बीह पढ़ रही थी कि शुजा के जूतों समेत बेड पर लेटता देख खिल उठी थी। मेरा बच्चा, मेरी जान, आप कब आए? वो फौरी आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रख गई। आपकी बहू को साथ लाया हूँ। वो आंखें मूंद गया। तो कहाँ है वो हैरान हुई। आपकी पोती पूरे घर का गश्त करवा रही है, बस आती होंगी। आप ज़रा मेरी नज़र तो उतार दें, आपकी बहू की नज़र लग गई है मुझे। सर में दर्द हो रहा है मुझे। आंखें मीच कर पड़ा वो ज़रा शरारत से बोला था। बदमाश, ऐसे नहीं बोलते। वो बीवी है तुम्हारी, भला इसकी क्या नज़र लगेगी? उसके बालों में उंगलियां चलाती अब वो इधर उधर की बातें कर रही थी। एक बात पूछूं? मनोज आंखें मूंदे हुए था। क्या हाल है? नूर भी आपको पसंद करती हैं? सब यही जानते थे कि दोनों की लव मैरिज है। जी। उसने झट झूठ से काम लिया। मैं जितनी बार भी बहू के घर गई हूँ मुझे महसूस हुआ उनके वालिद आपके साथ रिश्ते से नाखुश हैं। यहाँ तक कि वो हाले से भी सही से बात नहीं करते। उन्होंने अपने खदशे बयान किए। जानती तो हैं आप हमारी सोसाइटी के टिपिकल अब्बाओं को। हाले ने अपनी पसंद का इज़हार कर दिया बस। बेटी की पसंद के अलावा उन्हें दुनिया का हर मर्द ही अच्छा लगता होगा। वह रोज़ आँखें मीचे हुआ था जब ही हाले रूम में आई थी। अस्सलाम वालेकुम दादू। वो आगे बढ़कर सिर झुका गई। शुजा ने ज़रा सी आँखें खोल कर उसे देखा था। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, सदा सुहागन रहो। और वो उसे प्यार कर रही थी और साथ ही पास बिठा लिया था। आप दोनों को एक साथ देखने का इतना अरमान था मुझे। आप जल्दी से हमारे घर आ जाएँ तो रौनक कायम हो जाए। हानि ने पलट कर देखा। वो आँखें मूंदे लेटा था जब ही उसने एकदम से आँखें खोली थी। दोनों की आँखें मिली थी और हाले सटपटा कर रुख बदल गई थी। अब वो हाले से छोटी-छोटी बातें कर रही थी। चलो दादो, चलें दादो, अब हमें इजाज़त दें। शुजा ने घड़ी में वक़्त देखते इजाज़त चाही। अरे ऐसे कैसे? पहली बार हमारी बहू अपने घर आई है, खाना खा कर जाना। उन्होंने मोहब्बत से कहा। नहीं दादो, मैं घर बताकर नहीं आई हूँ। इससे कबल वो कुछ बोलता हाले झट से बोली थी। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हारा अपना घर है। वो शीरीं लहजे में बोली। नहीं दादो, हमारा बाहर डिनर का प्लान है। जब ये मुस्तकिल आ जाएगी ना तो आप अपने सारे अरमान निकाल लीजिएगा। वो बेड से उठता संजीदा लहजे में बोला। चलो ठीक है, खैर से जाओ। उनसे दुआएं लेती वो शुजा की हमराही में वहां से निकल आई थी। आज मौसम खासा खुशगवार था। वो उसकी हमराही में ओपन एरिया रेस्टोरेंट में मौजूद थी। अभी कुछ देर पहले ही ऑर्डर दिया था। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी जबकि शुजा किसी से कॉल पर मसरूफ था। वक्त गुजारी के लिए वो भी बैग से मोबाइल निकाल कर फेसबुक स्क्रॉल करने में मशगूल हो गई थी। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि वो इसे मोबाइल पर झुका दे कॉल मुख्तसर करके ख़त्म करता अब मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ था जो ना जाने के ख्यालों में गुम थी। किसको मैसेज कर रही हो? उसकी अचानक आवाज़ पर वो चौंक कर मुतवज्जि हुई। किसी को नहीं। मोबाइल स्क्रीन ऑफ करके और वो टेबल पर रख चुकी थी। रात का वक्त था और कराची के रेस्टोरेंट्स लोगों से भरे हुए थे। ऐसे में शुजा ज़रा अलग थलग को कॉर्नर टेबल पर लेकर बैठा था। पढ़ाई कंप्लीट हो गई तुम्हारी? वो वैसे ही सवाल कर रहा था क्योंकि सच तो ये था कि दोनों एक दूसरे के साथ बोर हो रहे थे। वो मुख्तसर सा जवाब देती खामोश हो गई जबकि शुजा की गहरी निगाहें उसी के चेहरे पर मरकूज थी। अब के घूर घूर कर खाओगे मुझे? मुसलसल उसकी नजरों से पजल होती बिलाखिर वो फाड़ खाते लहजे में बोली थी। शुजा के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट खिल गई थी। तुम्हें खाने के लिए ये जगह जरा नामुनासिब नहीं है? कहो तो घर वापस चले। वो फ्रेश मूड के साथ उसे जानबूझकर छेड़ रहा था जिसके चेहरे पर जरा नागवारी के तासुरात उभरे थे। बेहुदा बातें करने के अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? वो दोनों बाहिर थे और इसे यकीन था यहाँ वो कुछ नहीं कह और कर सकता। इसीलिए ज़रा शेर हुई थी। बेहुदा हरकतें भी करनी आती हैं, कहो तो डेमो दूँ? वो मुसलसल उसे लफ्ज़ों से टीज़ कर रहा था।
सन की इंसान हो तुम। ये अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आए? और वो उसकी हमराही में खौफ हो रही थी। आते होंगे, तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज़ हैं क्या? हाले जो इर्द-गिर्द में निगाहें दौड़ा रही थी, उसके सवाल पर ठहर सी गई। खुश्क निगाहों से उसकी मुतजस्सिस आँखों में देखा था, जिसने ज़रा एटीट्यूड से आईब्रो उठाई थी। जी, आपकी मेहरबानी है। शुजा के लबों पर मुस्कुराहट खिल गई थी। कोई बात नहीं, पाकिस्तान के टिपिकल अम्मा-अब्बा बेटियों की पसंद पर अमूमन ऐसा ही रिएक्शन देते हैं। मगर जब तुम उन्हें इसी साल नाना मना दोगी ना, तो देखना सारी नाराज़गी खत्म हो जाएगी इनकी। हाले का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। न जाने ये वाहियात शख्स क्या चीज़ था। तुम? उसने गुस्से से दाँत किचकिचाए। चेहरे की रंगत इंतहा की हद तक सुर्ख पड़ गई थी। मैं? उसकी हालत से उठाते वो हनूज़ शरारत के मूड में था। उस लड़की को तपाने का अपना ही मज़ा था। तुम्हारी खुशफ़हमी है कि मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ गुज़ारूँगी, उसने इस बार ताक करवार किया था। और ये तुम्हारी भी खुशफ़हमी है कि मैं तुम्हें कभी आज़ाद करूँगा। वो जवाबी वार करता वेटर को सर्व करने के लिए आता देख खामोश हुआ था। हाले ने भी उसे घूर कर देख चिप्पी साध ली थी। तुम्हें मालूम है तुम एक ज़हनी मरीज़ हो। मनोज शदीद गुस्से में थी। और तुम ज़हनी मरीज़ की बीवी। हाले का दिल किया अपना सर फाड़ ले। अब जल्दी खाओ ये ज़हर और मुझे घर छोड़ो। पता नहीं कौन सी मुसीबत थी बाहर आने की। हाले का मूड पूरी तरह बिगड़ा था। ये ज़हर मैंने मिल बाँट कर खाने के लिए मँगवाया है। नैपकिन फ़ोल्ड करके घुटनों पे डालता अब वो नर्म ख़ुई से बोला था। हाले का चेहरा गुस्से की शिद्दत से इंतहा का सुर्ख़ पड़ गया था। मुझे नहीं, अपनी बात दोबारा दोहराऊँगा नहीं मैं। फटाफट से खाना स्टार्ट करो। सामने बैठी लड़की जिस कदर ज़िद्दी थी वो बख़ूबी वाक़िफ़ था। इसीलिए इस बार सर्द लहजे में तंबीह की थी और ये तंबीह कारगर साबित हुई थी। अच्छी ज़बरदस्ती है। आइंदा के बाद मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाना ज़रा। वो बड़बड़ाई थी। आइंदा से क्या मुराद है तुम्हारा? 15 दिन बाद तुम मेरे घर में होगी तो मैं पागल हूँ बेबी प्लानिंग के बजाय तुम्हें बाहर लेकर आऊँगा। हाल ही जब पानी का सिप ले रही थी, उसे इस बेबाक शख्स की घोर अफशाई पर ठसका सा लगा था। अब वो मुँह पर टिश्यू रखे मुसलसल खांस रही थी, जबकि वो मुतमईन अंदाज में सुशी खा रहा था। हालांकि तो इस कच्ची मछली को देखकर ही कराहियत आई थी। बस भी कर दो, ऐसा क्या अनोखा बोल दिया मैंने? और मुझे देखने का अगर ज़्यादा ही शौक है तो बाद में नौमा आराम से देखना। हाले का दिल क्या यहाँ से उठकर भाग जाए। तुम्हें तमीज़ नहीं बात करने की? वो शर्म से सख्त पड़ गई थी, मगर मजाल है जो इस ढीठ इंसान को ज़रा भी फ़र्क पड़ गया हो। बीवी से बात करने की तमीज़ सीख रहा हूँ। वो इस ज़बरदस्ती की शादी में इस मुतमईन अंदाज़ में उसे बीवी और बेगम कॉल करता था, जिससे दोनों के माबीन बड़ी ही कोई मोहब्बत हो। खाना खाने दो अब मुझे सुकून से। शुजा ने उसका शर्म से सख्त चेहरा देख मुस्कुराहट दबाई थी। अभी भी बामुश्किल 2 मिनट ही गुज़रे थे कि किसी शनासा आवाज़ ने हाले को मुतवज्जि होने पे मजबूर किया था। तुम यहाँ कैसी हो? उसने शुजा को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। जबकि वो खाने से हाथ रोककर अब हाले को देख रहा था, जिसका चेहरा फक हो गया था। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई थी। इनसे मिलो, ये शुजा हैं और शुजा, ये मेरा कज़न। हाले ने ज़रा गड़बड़ा कर जल्दी से सफाई दी थी। हेलो मिस्टर शुजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बख्तियार बिल्डर्स, इन्हीं के बैठे हैं ना आप? शुजा बख्तियार। भला शुजा बख्तियार के नाम से कौन नावाकिफ था? जी बिल्कुल, दुरुस्त पहचाना आपने। हाले भी अब तज़ब्ज़ुबे का शिकार थी। आइए हमें जॉइन करें। उसने हक़ मेज़बानी निभाया था। थैंक यू सो मच, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। बस हाले को देखा तो चला आया। वैसे बड़ी छुपी रुस्तम हो, तुम शादी कर ली और बताया भी नहीं। हम इंतज़ार में ही रह गए। वो ज़रा ज़ुबानी लहजे में गोया हुआ था। शुजा की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। अभी जस्ट निकाह हुआ है। कुछ दिन में रुखसती है। बाबा मामा आएंगे तुम्हारी तरफ, वो जल्दी से बोली, जबकि वो मुस्कुरा कर अल्लाह हाफिज करता अब वहां से चला गया था। हालांकि जान में जान आई थी। कौन था ये? शुजा ने नागवारी से इस्तफसार किया था। दूर के चाचू हैं, उनका बेटा है, उसने धीमी लहजे में बताया। तो तुम्हारे साथ इतना फ्री क्यों हो रहा था? क्या इस अंधे शख्स को मैं नजर नहीं आ रहा था? उसने दांत किचकिचाए। उसकी आदत है छिछोरेपन की। वैसे भी मैं उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाती, इसलिए जानबूझकर बकवास कर रहा था।
حالے بھی صاف گوئی سے بولی تھی۔ اس کی عادت تو میں ٹھیک کروں گا۔ شجاع کو شدید قسم کا اشارہ تھا۔ رات کافی ہو گئی ہے، اب مجھے گھر چھوڑ دو۔ شجاع بھی خراب موڈ کے ساتھ بل پے کرتا اسے لیے گھر کی جانب بڑھا تھا۔ سنو، وہ باہر گاڑی سے نکل رہی تھی جب اس کی اچانک پکار پر ٹھہری۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شاپنگ تو تم نے کی نہیں، اب کیا بولو گی گھر والوں کو؟ وہ سوالیہ بولا تو حالے کو یکدم خیال آیا تھا، کوئی اتنا سوال نہیں کرتا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ جبھی شجاع نے گاڑی میں پیچھے رکھے شاپرز اٹھا کر اس کی گود میں رکھے تھے۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ ڈریسز ہے اور جیولری وغیرہ۔ مریم نے تمہارے لیے خریدا تھا، ٹرائی کر کے دیکھ لینا۔ وہ سر ہلاتی گہری سانس بھر کر رہ گئی، ساتھ ہی قدم گاڑی سے باہر نکالا تھا اور 3 4 شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیا وہ بیل بجا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا باہر آیا تھا اور وہ سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ پاگل عورت! زیر لب بڑبڑاتا وہ گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ جاری ہے۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگ رہی ہے آپ کو اسٹوری؟